Hello my dear students. Friends, we use various languages for the communication like Hindi, English, Marathi, French, Gujarati, Japanese, Russian, German and so on. The many languages we can speak to communicate, to transfer our message to other person. Okay? So, how to learn language? The first step to learn language is learn the alphabet of that language. पहले स्टेप में हम क्या करना पड़ेगा, उसके अल्फ़ाबेट हमें लर्न करना पड़ेगा. सपोज मुझे इंग्लिश पढ़ना है तो मुझे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आना चाहिए. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, अरेंज द अल्फ़ाबेट इन सच वे दैट वन कैन फॉर्म वर्ड हैविंग सम मीनिंग्स. मतलब हमें छोटे छोटे वर्ड्स फॉर्म करना पड़ेगा, उसका मीनिंग हमें पता चलेगा. सपोज एप्पल है तो APPLE हमें लिखना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ वर्ड. एंड द थर्ड स्टेप इज दैट द सेट ऑफ वर्ड्स into the meaningful sentence. मुझे एप्पल पता चल गया, अभी मुझे एप्पल खाना है तो आई वॉन्ट टू से दैट आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, ईट एन एप्पल. सो दैट सेंटेंस, वो सेंटेंस कैसे बना है, क्योंकि स्मॉल स्मॉल वर्ड्स को क्लब करके सेंटेंस बना है. सो सिमिलरली वी कैन स्टडी द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो. तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज भी हम उसी प्रकार हम पढ़ सकते हैं. सो इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द लेसन language of chemistry. This is part first video, class 8 ICSE. Let's start my dear students. In this lesson we will explore about the representation of elements, representation of compounds, law of conservation of mass, molecular mass, write a chemical equation of the reaction and the balancing chemical equation. But in this part of video, the first part of video, we will cover these 2 points. Friends, there are many different countries having a different currencies. So you can see here in our India, so we use the currency rupees. In the China, yuan. In the USA, dollar is there. So different country having their own currencies. As well as every country has their own currency and which represent by its specific symbol. We can represent the rupees like this. Dollar, the representation of dollar is like this. This is a symbol of pound, this is a symbol of euro, this is a symbol of yen. So each currency can be represented by the particular symbol. So like in this way, the elements need to have their specific symbol to everyone understand about that name. Means suppose I want to speak or I want to talk about the hydrogen, then I can write only H, means everyone will understand I am talking about the hydrogen. So let's study more about the symbol of element. So first of all we will understand what is exactly the element before going to the symbol of element. क्या है एलिमेंट? द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एज एलिमेंट. वो एक ही टाइप के उसमें एटम्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स. सो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेनी एलिमेंट्स आर देयर. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम. एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट्स का सबसे छोटा टुकड़ा जिसको हम बाद में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, अनकटेबल पार्ट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम्स. For examples, the element gold contains only one kind of atom, that is gold atom. एलिमेंट गोल्ड अगर कहा जाए या एलिमेंट गोल्ड के बारे में हम अगर कहते हैं तो सभी एटम्स जो गोल्ड के एटम्स है दैट आर नथिंग बट द, वो क्या है, सब के सब गोल्ड ही एटम है. अदर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कार्बन, सोडियम एंड द ऑक्सीजन और मेनी मोर एग्जांपल्स कैन से. There are total nearby 118 elements discovered till today. Out of the 118 elements, 19 elements are found naturally. 90 elements naturally हमें मिले हैं, but the remaining, that is the 28 elements, have been prepared artificially by the scientists in the laboratories. टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट है, उसमें से 90 एलिमेंट हमें अर्थ क्रस्ट में या नेचर में हमें मिले हैं, and the remaining 28 elements prepared in the laboratories by the scientist. Okay, element क्या है? Element nothing but the substance that consists only one kind of atom.
नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम? एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है that consist only one kind of atom. just I told you each element has own unique properties. सभी element जो 118 elements which are discovered till today, every element, each element having a different unique properties. The atoms of an element exhibit the same property as the element. Suppose for example we are talking about the carbon, means the all atoms of carbon shows the similar property. Okay, suppose hydrogen is there, hydrogen element having the some particular property, so the all atoms of the hydrogen shows the similar property. Every atom of the element is the show the similar property. Elements cannot be separated or the broken down into the simpler components by physical or chemical means or chemical methods. एलिमेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. एलिमेंट्स हैविंग अ यूनिक प्रॉपर्टीज. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट. नाउ आवर मेन पॉइंट इज दैट हाउ टू रिप्रेजेंट एलिमेंट. एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जस्ट वी हैव टेकन द एग्जाम्पल्स ऑफ द करेंसीज. डॉलर कहा जाए तो दैट विल बी द सिंबल डॉलर. रुपीज़ कहा जाए तो दैट विल बी द सिंबल रुपीज़. सो दीज आर द सिंबल्स. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द एलिमेंट? Okay, so the representation of the element using the short form or the abbreviation of its name is known as chemical symbol. मतलब किसी एलिमेंट को हमें सिंबल देना है, that is called as chemical symbol. तो it will be the short form of that name of that element or abbreviation for that name of elements. It should be there. So that is called as a representation of elements. Before going to further, in the ancient time or in the early time, the elements were represent. पहले के ज़माने में क्या था? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चोरियल फॉर्म था. मतलब ऑक्सीजन है तो वन सर्कल इज नथिंग बट द ऑक्सीजन कहा जाएगा. अगर सर्कल के अंदर एक डॉट है तो उसको हाइड्रोजन कहा जाएगा. अगर सर्कल के अंदर एक लाइन है तो उसको नाइट्रोजन कहा जाएगा. कार्बन, अगर सर्कल क्या है, ऐसा भरा वाला सर्कल है तो उसको कार्बन कहा जाएगा. दीज आर द पिक्चोरियल सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट in earlier times. But currently there are 118 elements, so there is a symbols or the pictures not possible. That's why the elements were named after the names of the place where they were first found. उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मतलब उसके बाद जो पहले ज़माने में जो पिक्चर था उसके बाद में हम क्या नाम दिए, उसको क्या सिंबल दिए? तो दैट एलिमेंट्स वेयर दे फाउंड. जो एलिमेंट कहाँ पे वो मिला हमें या कहाँ पे फाउंड है, उस प्लेस का नाम उसको दिए तो उसको नाम आ गया. हम सपोज हमारे एक विलेज है समझो, फॉर एग्जांपल नांदेड़ एक सिटी है, तो नांदेड़ नाम क्यों आ गया? बिकॉज देर इज़ वन राजघराना इज देयर, दैट्स वाई द नांदेड़ इज नेम इंडिकेट. कुछ तो रीज़न है उस नाम के बिहाइंड, कुछ मीनिंग है उस नाम के बिहाइंड. लाइक सेम वे कॉपर है, कॉपर नाम क्यों दिया? क्योंकि उस प्लेस का नाम है क्यूपरस, दैट्स वाई द कॉपर नेम गिवन. सो बाद में वो एलिमेंट कहाँ पे मिला है तो उस प्लेस का नाम उस एलिमेंट को देने की पैटर्न आ गया. नाउ विद द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न मेथड्स टू रिप्रेजेंट आर एज फॉलोज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडर्न मेथड्स टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स. क्या है मॉडर्न मेथड? The first point is that the first letter of the name of the element is used as a symbol. The first letter of the elements. For example, suppose hydrogen है, कार्बन है, ऑक्सीजन है. So the first letter of hydrogen is H. That's why the symbol of hydrogen is H. The first letter of carbon is C. So the symbol of carbon is C. The first letter of oxygen is O. That's why the symbol of oxygen is O. So the first letter, that is a capital, should be there. The पहला letter क्या है? Capital letter है. Got it? The English names of these elements are similar as their Latin names. मतलब हाइड्रोजन का लैटिन नेम हाइड्रोजन ही है, कार्बन का लैटिन नेम कार्बन ही है, ऑक्सीजन का लैटिन नेम ऑक्सीजन ही है. That's why the first letter written as a capital as a symbol.
नाउ इफ अगर समझो फॉर एग्जांपल ये 3 एग्जांपल आप देखो, कैल्शियम है, कैडमियम है और क्लोरीन है और कोबाल्ट है। नाउ यहाँ पे द फर्स्ट रूल इज दैट वी हैव टू गिव द नेम्स, द फर्स्ट नेम इन क्या, कैपिटल में। तो कैल्शियम का कैपिटल में सी आएगा, तो सी इसका सिंबल है क्या, नहीं है, क्योंकि सी सिंबल किसका है, कार्बन का है। हाँ, नाउ कैडमियम, तो कैडमियम है, थर्ड है क्लोरीन है और द लास्ट है कोबाल्ट। सो ऐसे केस में अगर सभी एलिमेंट का अगर समझो द फर्स्ट लेटर इज द सेम, अगर फर्स्ट लेटर सिमिलर है या सेम है तो सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल, द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल, Ca तो कैल्शियम। नाउ यहाँ पे कैडमियम है तो Ca सेम आ जाएगा तो थर्ड लेटर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे Cd, यहाँ पे CHL क्लोरीन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे कोबाल्ट है तो CO। such type we can give the symbol first letter should be capital and second letter should be small. If the two or more elements have their English names starting with the similar letter, then the two letter symbol is used. Only two letter symbols is used. The first letter written as a capital and the second letter should be written as a small letter. These are the examples. Next, in some cases, कुछ ऐसे केसेस है, इन सम केसेस द इंग्लिश नेम एंड देयर लैटिन नेम इज़ डिफरेंट। द एलिमेंट, जो एलिमेंट के नाम है उसका इंग्लिश नेम अलग है, अब अगर लैटिन नेम अलग है, सो दैट नेम शुड बी गिवन ऑन द लैटिन नेम। फॉर एग्जांपल लैटिन नेम किसका, पोटेशियम का क्या है, कीलियम है, मगर पोटेशियम क्या है, इंग्लिश नेम है। पोटेशियम इज़ अ इंग्लिश नेम एंड कीलियम इज़ अ लैटिन नेम। सो पोटेशियम का सिंबल क्या आएगा, K is a symbol. So symbol is given on the basis of Latin name. Another example, Latin name of gold is aurum and English name is gold. This is an English name, this is a Latin name. So what is the symbol, AU. AU is a symbol of gold. Got it? समझ में आ गया आपको? These are the some examples. Sodium, सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नाइट्रियम, सो द सिंबल इज Na. आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम, सो द सिंबल इज Fe. कॉपर का लैटिन नेम क्या है, कॉपर है क्या, नहीं है, क्यूपरम है तो Cu इज अ सिंबल। सिल्वर का लैटिन नेम क्या है, अर्जेंटियम, अर्जेंटियम है तो अर्जेंटम बोलते हैं आप उसको, Arg है तो Ar डबल आ जाएगा तो Ag आएगा तो Ag सिंबल। मर्क्यूरी का लैटिन नेम Hg on the Hg, okay. Hydra, Garum, that's why Hg is लिखते हैं उसको. So these are some examples on the basis of Latin name. Now these are some another examples of the name and their symbol. Helium, directly He, nitrogen N, iodine I, aluminium Al, zinc Zn, phosphorus Phe, magnesium Mg, manganese Mn, argon Ar, and the platinum is Pt. So these are some examples of elements having their symbols. So this is nothing but the name of scientist, that is a Swedish chemist, that is a J.J. Berzelius. उसका काम क्या है, who contributes the field of chemistry. He was the first person, ये scientist first person है to suggest that the first one and two letters of the name of element can be used as a symbol. Elements को element ही, हम नाम को हमें नाम ही कहते हैं, मगर elements को symbol, first letter and second letter ऐसे symbol होना चाहिए, लिखना चाहिए, ऐसे कौन कहा पहले, सबसे पहले J.J. Berzelius ने कहा. So the contribution is the important, that's why this is the first scientist, first person to suggest that the first one or the two letters of the name of the element can be used as a symbol. He identified the elements thorium, और उसने कुछ elements identify किए हैं, silicon, cerium and the selenium. He is popularly known as the father of Swedish chemistry. J.J. Berzelius is nothing but the father of Swedish chemistry, उसको कहा जाता है.
Now we are going to discuss about the compounds. The chemical substance formed when two or more atoms of different elements. Remember this point is that when the two or more atoms of the different element, उसको कहा जाता है compounds. The chemical substance formed when the two or more different elements combine chemically in a fixed proportion is called as compounds. For example, carbon dioxide, CO2, one carbon, two oxygen combined together and the compound is formed. Salt, there are many salts present. NaCl, well known salt, Na and Cl combined together, sugar, and many more examples are there. H2O, two hydrogen and one oxygen. So these are the examples of compounds. So here in the compounds, two or more atoms of different elements should be there. Carbon, oxygen, sodium chloride, hydrogen, oxygen. So dissimilar metals, more than two भी रह सकते हैं या दो भी रह सकते हैं. dissimilar metal चाहिए. Suppose for example in the case of hydrogen gas, इसको क्या कहा जाएगा? H2 है, O2 है, N2 है. So these are the different gases. Okay, H2 gas means hydrogen gas, O2 gas and N2 gas, उसको कहा जाएगा molecule. This is not a compound. These are the molecules. अगर similar atoms है and combined together chemically तो उसको बोलते हैं molecule. मगर what is compound? Compounds means when the more than two atoms of different element combine chemically in a fixed proportion is called compounds, and the compound is made up of the molecules of the same kind. Okay, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, मतलब दोनों ऑक्सीजन सेम काइंड के बने हैं, तो कार्बन. फॉर एग्जाम्पल वाटर कंटेन्स H2O, वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल. वाटर के अंदर H2O, मतलब अभी H2O कितना ही लिया जाए, हाँ 100 ml लिया या 1000 लीटर भी लिया या 10,000 लीटर भी लिया, तो सभी के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सभी की प्रॉपर्टी, सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी द सेम, एंड ऐसे भी रहते ही है. नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स. Compounds are the pure substance formed when the two or more atoms of different elements combine together chemically in a fixed proportion. Okay, pure substance है. Compounds क्या रहता है? Pure substance रहता है जो element से form हो गया. The properties of the compounds are different from the properties of their constituent elements. इसका मतलब क्या हुआ? For example के तौर पे देखते हैं हम. Suppose H2O is a compound. H2O is formed by the two hydrogen atoms and one oxygen atom. So the property of hydrogen is different and the property of oxygen is different, and in the water molecule the property is not similar like H and not similar like O. So the property is different from the element. जो element की property है उसकी property इसमें नहीं रहती है. The property is डिफरेंट. प्रॉपर्टी क्या रहती है? डिफरेंट रहती है. फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल CO2 के केस में CO2 कैसे बना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन है, तो ऑक्सीजन और कार्बन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टी और इसकी जो प्रॉपर्टी है देर आर कम्प्लीटली डिफरेंट. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड? द प्रॉपर्टी इज डिसिमिलर और डिफरेंट प्रॉपर्टी. नाउ द कंपाउंड्स एग्जिबिट इन देयर ओन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जो कंपाउंड बनते हैं, समझो CO2 है तो CO2 की गैसेस फॉर्म में बना है, H2O लिक्विड फॉर्म में बना है. सो दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसकी खुद की अलग प्रॉपर्टीज है. कार्बन जो है प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, या कार्बन सॉलिड के स्टेट में फॉर्म है, या हाइड्रोजन गैस के फॉर्म है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म है, मगर ये दोनों को गैस के फॉर्म में होते हुए भी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म हो गया. तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी आर द यूनिक. देयर इसकी खुद की अलग प्रॉपर्टी रहती है इसकी कंपाउंड्स की. कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बाय केमिकल मेथड. केमिकल का मेथड का यूज़ करके हम कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल वी कैन सी टेक हियर H2O को हम अगर H प्लस एंड OH ऐसा हम उसको अलग अलग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल NaCl है, सॉल्ट है,
तो NaCl को अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो Na प्लस एंड Cl माइनस हो जाएगा, मतलब उसको एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन करके, केमिकल मेथड का यूज़ करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। हमने अभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन को H देते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, कैडमियम को Cd लिखते हैं। सो दीज आर द सिम्बॉल्स ऑफ how to represent element, but now we are going to talking about the representation of compounds। compounds को कैसे represent करते हैं, compounds को नाम कैसा देना है। तो chemical formula is representation of compounds। compounds को क्या देते हैं, जैसे elements को हम chemical symbol देते हैं तो compounds को chemical formula देते हैं। तो using the symbol of their constituent elements, समझो फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दो एटम्स या दो एलिमेंट्स कंबाइन होके CO2 फॉर्म हो गया, तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड, ऐसे नाम देते हैं। नाउ तो नाम कैसे देना है, उसके स्टेप्स क्या है, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। ये जो स्टेप्स है 1 बाय 1, उस स्टेप का यूज़ करके हम केमिकल फार्मूला दे सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज दैट राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट और रेडिकल और आयन। आयन्स और रेडिकल्स मतलब उसके ऊपर कैटायंस और एनायंस चार्ज होने चाहिए टू फॉर्म अ कंपाउंड। नंबर 2, द मेटेलिक पार्ट दैट इज अ पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन of a compound should be always written first, followed by the non-metallic part that is a negative ion। समझो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है NaCl, सो दो NaCl में Na मेटेलिक पार्ट है, Cl नॉन मेटेलिक पार्ट है, सो इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का O ऐसे हमें पहले लिखना है। द फर्स्ट स्टेप इज दैट आइडेंटिफाई द विच एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट हियर, विच एलिमेंट्स आर देयर, राइट द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, उसके एलिमेंट के सिंबल लिखो। थर्ड पॉइंट, राइट देयर वैलेंसीज ऑन द टॉप ऑफ देयर सिंबल्स एज सुपरस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, सेम एग्जाम्पल NaCl है, तो पहले स्टेप क्या है, उसके नाम लिखना NaCl। दूसरा रूल क्या है, उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिखो, इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, 1 लिखो। इफ़ द वैलेंसी आर आइडेंटिकल, अगर वैलेंसी क्या है, आइडेंटिकल है, तो कैंसल द वैलेंसी। यहाँ पे आइडेंटिकल है तो वैलेंसी इज कैंसल्ड, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, NaCl ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे MgO ऐसा है समझो, तो MgO के केस में यहाँ पे Mg और O, दीज आर द 2 एलिमेंट जिसकी वैलेंसी कितनी है, कितनी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, तो आइडेंटिकल वैलेंसीज, दैट्स वाई कैंसल द वैलेंसी एंड राइट MgO। सी अनदर एग्जांपल AlCl3। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट Al एंड Cl, दीज 2 एलिमेंट्स, Al की वैलेंसी कितनी है 3, Cl की वैलेंसी कितनी है 1 है। यहाँ पे वैलेंसी आइडेंटिकल है क्या, नहीं है। ओके, इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट, अगर वैलेंसी डिफरेंट है तो क्या करना है, देन इंटरचेंज द वैलेंसी विद द रेस्पेक्ट टू द सिंबल बाय मेकिंग एरोज एंड राइट देम एज अ सुपरस्क्रिप्ट। मतलब समझो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे AlCl, तो इसकी इसको और इसकी इसको वैलेंसी लिखना है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, मतलब Al1 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो AlCl3, ऐसे हम फार्मूला उसका लिख सकते हैं। नाउ सिंप्लीफाई द फार्मूला बाय डिवाइडिंग द वैलेंसीज बाय द कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर का यूज़ करके सपोज एक की पहले की वैलेंसी 2 है, दूसरे की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बाय डिवाइडिंग इट। ओके, दिस इज आर द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। If the compounds contains compounds radicals, then the radicals are enclosed with the brackets and the numbers is written outside the brackets. For example, in the valency of magnesium Mg++, उसको ब्रैकेट करना है
NO3 माइनस माइनस उसको ब्रैकेट करना है, और NO3 कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमें केमिकल फार्मूला ऐसे लिखना है. वी विल सी द एग्जांपल्स. ओके, हम पहला एग्जांपल देखते हैं. पहला एग्जांपल किसका है, कैल्शियम क्लोराइड का है. तो कैल्शियम फर्स्ट स्टेप क्या है, उसके नाम लिखो. पहला लिखा है कैल्शियम, दूसरा है क्लोराइड का Cl. क्लोराइड का क्लोरीन है, तो क्लोरीन लिखना है हमें, Cl लिखना है. तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी. क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, 1 ही है, तो 1 वैलेंसी. तो उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, इंटरचेंज करो उसकी वैलेंसी. कैल्शियम की वैलेंसी Cl को दे दो, Cl की वैलेंसी इसको दे दो, एज अ उसके सबस्क्रिप्ट में लिखना है, इंटरचेंज करके नीचे लिखना है. तो Ca1 Cl2, 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, इसलिए हम उसको सीधा लिख सकते हैं CaCl2. अनदर एग्जांपल, सोडियम सल्फाइड. द फर्स्ट स्टेप, सोडियम सल्फाइड मतलब सल्फर. सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2. सोडियम की 1, सल्फर की 2, इंटरचेंज करो, Na2 यस, 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, दैट्स वाई Na2 यस, दिस इज अ सोडियम सल्फाइड. Now let's write the chemical formulas of the some compounds. The first one, sodium oxide Na2O. कैसे, सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो इंटरचेंज, दैट इज Na2 और O सिंगल. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, तो सेम. जिंक ऑक्साइड, झड़ेन की 2, ऑक्सीजन की 1, ऑक्सीजन की 2, तो 2 मतलब सेम हो गया. कॉपर ऑक्साइड, कॉपर की 2, ऑक्साइड की 2, 2 मतलब सेम हो गया. 2 मतलब क्या है, कैंसिल हो गए, दैट्स वाई 1 लिखते हैं हम, लिखने की जरूरत नहीं है. पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, दैट्स वाई K2O1. These are the some examples of how to write the chemical formulas of the compounds. These are other examples. सल्फाइड के केस में है झड़ियन Fe2. अभी Fe की देखो 3 है, यस की 2 है, इंटरचेंज करो, Fe2 यस 3, सेम. हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड. So these are the some examples how to write the chemical formulas of the compounds. Remember that in a chemical formula, the subscript denotes the number of atoms of the element present in one molecule of the compounds. For example, Fe2O3, Fe2S3, there are 2 atoms of Fe, that is iron, and 3 atoms of sulfur. For example, another example, CO2, carbon is only 1, but the oxygens are 2. Another example, H2SO4, in this case hydrogens are 2, sulfur is 1, oxygens are 4. K2Cr2O7, here potassium are 2, chromium 2, oxygen 7. So the number indicates that how many atoms which are present in that compounds. Here some examples given: name of the compound, constituent element, and the formula. The first one, methane, carbon, hydrogen, CH4. Sodium hydroxide, sodium, oxygen, hydrogen, NaOH. Calcium hydroxide, calcium, oxygen, hydrogen, calcium OH taken twice. ये कैसा लिखा है यहाँ पे, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, हाइड्रोक्साइड का मीनिंग है OH. रिमेंबर दैट, हाइड्रोक्साइड मतलब OH है. तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, आपको मालूम है 2 है. ओके, OH की वैलेंसी 1 ही है, दैट्स वाई CaOH टेकन ट्वाइस. सेम केस पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रेट है, नाइट्रेट मतलब NO3, पोटेशियम मतलब K. सो दोनों की वैलेंसी 1 ही के है, दैट्स वाई. सल्फर डाइऑक्साइड SO2, H2SO4, कॉपर सल्फेट Cu, सल्फर, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, CuSO4, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कार्बन,
ऑक्सीजन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, ये कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4, डाइऑक्साइड मतलब O2, हाइड्रोक्साइड मतलब OH एंड नाइट्रेट मतलब NO3. ये आपको ध्यान रखना है. नाउ रिविजन जोन, we have to identify what we have learned. Okay, identify the chemical formula of the compounds. कॉपर क्लोराइड को कैसे लिखते हैं हम? कॉपर फर्स्ट स्टेप Cu, क्लोराइड Cl, 2 1, तो Cu क्या यहाँ पे इंटरचेंज होगा, CuCl2. ओके, सेकंड झड़ियन, जिंक ऑक्साइड है, झड़ियन एंड O2 ऑक्साइड का, तो क्या होगा, झड़ियन O. सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम सल्फाइड CaS. इस प्रकार हम एलिमेंट को सिंबल कैसे देना है या कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला कैसे देना है, जस्ट वी लर्न ओवर हियर. इफ यू हैव एनी क्यूरी you can ask me in comment section. Thank you my dear students.